Hi everyone, Ashish Kyal here and warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. This is just a very short, quick video on Nifty trading, Bank Nifty key levels for tomorrow and what you have to keep a watch on, how you have to look at the markets. तो फ्राइडे एट 4 हुआ नहीं तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाए जिससे पता रहे आपको कि कौन से लेवल्स देखने हैं, कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को समझना है और यहां से क्या वेव पैटर्न. सो आई एम गोइंग टू शो यू विद रिस्पेक्ट टू नियो वेव, where are we headed basis of Elliott wave, what is the overall trend looking of the market, is the pattern changed, what is going to happen, because we are at a very important junction as of now and we have managed to close back about that 22,000 mark and it looks like that the overall movement is finally reversed on the upside. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ओवरऑल मार्केट को प्राइस एक्शन के साथ देखना है और साथ में सारी चीजों को हम क्लब करके देखेंगे. आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर इस टाइप का वीडियो जो मैं बना रहा हूं आपको पसंद आता है, जो थोड़ा शॉर्ट है और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से है, की लेवल्स के पर्सपेक्टिव से, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट अक्रॉस एंड साथ में कमेंट भी लिखिए. लास्ट टाइम मैंने जो ऐसे वीडियो बनाए थे उसमें बहुत अच्छे और बहुत सारे कमेंट्स थे, सो आई थॉट आई विल डू दैट अगेन. आज फ्राइडे एट 4 इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज आई हैव एन इवेंट टुमारो विच इज आई एम स्पीकिंग एट मोतीलाल ओसवाल. It's going to be a wonderful entire day, 8 hours. I'm going to talk about Elliott wave, about time, how to look at those things. ये सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ. 8 घंटे का सेशन है दोस्तों, तो इसलिए उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, लाइव नहीं आया. एंड आई एम श्योर यू आर लविंग द एवरीथिंग दैट आई टॉक अबाउट एंड दैट्स व्हाई फॉर यू ऑल आई एम डूइंग दिस. तो पहले तो समझते हैं मार्केट में हुआ क्या. ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देयर वाज सम काइंड ऑफ अ pressure on the downside, but then prices reversed back on the upside in the around 2 days back. अगर हम देखेंगे तो जो रिवर्सल था अपसाइड पे, that broke a very important channel and that confirmed that the overall wave pattern might be changing. Now the key levels that you have to keep a watch on Nifty is going to be 22,055. I've been tweeting about this level. Nifty has not closed about 22,055. It managed to win there. हमारा टारगेट था 22,055 शॉर्ट टर्म के लिहाज से and it achieved that target. It went there and achieved that target and just consolidated sideways. Looking at the gapping action and sustainability, so इसे हम कहते हैं प्रोफाइल के लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस. तो मार्केट ने एक्सेप्टेंस दिया है अबाउट दैट 22,050 के ऊपर. तो ये देख के तो लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए पॉजिटिव है. 3 candlestick rule on the basis of candle, the overall trend on daily chart has reversed back on the upside. That is what we can say. Now on the basis of the wave theory, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ. So the key level for me on Nifty is going to be 22,118, which is the level from where it reversed 2 times. This is the third attempt it can give at that level. On the downside, immediate support for me is around 21,920, followed by 21,840. ये सारी चीजें मैं लिख के आपको चार्ट पे दिखाता हूँ. तो चलिए, let me quickly share across my screen here. If I'm looking at this overall chart of Nifty and from the wave perspective, if I have to talk about, the entire movement on downside was in 3 waves, which was wave A. This movement on the upside is in the form of wave B. We had an exclusive session which we did with the past mentees also. And I explained that this fall, it was just wave 1, 2, 3, 4, and 5th, which completed wave C at this point of time. And this was a terminal impulse pattern. Terminal impulse. Terminal मतलब ending diagonal. तो ये जो पूरा पैटर्न बना, ये इरेगुलर सी फेलियर फ्लैट पैटर्न बना. सो इरेगुलर सी फेलियर मतलब वेव ए बी ऊपर तक गया and C went into a form of a terminal impulse pattern. This is how the pattern formed and we got a break above this. So this was A, this was wave B, this is C, and this is where we have completed wave G. Now since the momentum did not build up, so यहाँ expectation थी normal impulse बनने की,
नॉर्मल इम्पल्स होना था, तो यहाँ पर पुल बैक जो आया, इट शुडंट हैव गॉन अबाव द ओवरलैपिंग वेव 2 एज पर द नियो वेव रूल्स, लेकिन वो हो गया। तो यहीं पे इंडिकेशन था कुछ तो गड़बड़ है, नीचे में मोमेंटम नहीं बन रहा। एक और मौका मार्केट को मिला, गैप डाउन हुआ जब यूएस मार्केट में सेलिंग था, हम गैप डाउन ओपन हुए। यहां पर 9:45 का एक टाइम था, which I have talked about, 9:45 a.m. as the time, and that time worked magic. From that 9:45 a.m., the prices went up sharply and it broke above this 2-4 trend line also, which was the first indication something is changing in the current market from short-term perspective. Short-term perspective. Now, ये pattern बनने के बाद में, since we have broken on the upside, this looks like an ABC kind of a pattern with a C failure, and फिलहाल हम वापस से ऊपर आ चुके हैं. Now, if we manage to close about 22,055 and cross this high, यहाँ sustain नहीं कर पा रहे. We had a top here, we had a top here, and we are now going to be again at 22,118. अगर हमने इसे क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो पॉसिबिलिटी इज गोइंग टू बी दिस correction of ABC becomes wave X. So currently we are here as per the GPS of the market. अगर हम देखेंगे, this is where we are, and the entire move that you seeing here will become wave X. अभी एक बात यह है कि अगर हम टाइम साइकिल के से लिहाज से देखें, so this is where we are right now, and this is how we are seeing the chart. If I check from the time cycle perspective, if I let me just clear up the screen, and I'm going to go on the daily time frame chart. If I'm looking at the daily time frame chart, what I can clearly see that the cycle is still on the 75% of the area, which means यहाँ पर pressure तो बनना चाहिए, और ये होगा करीबन फ्रॉम द ब्लू लाइन वी आर स्टार्टिंग, सो डिप चाहिए 5th of March के आसपास. बट द ओनली चैलेंज राइट नाउ इज वी हैव स्टिल नॉट जनरेटेड मोमेंटम ऑन डाउन साइड. अगर हम देखेंगे तो वी हैव डन अ साइडवेज करेक्शन रेदर देन अ प्राइस करेक्शन. तो टाइम करेक्शन तो हो रहा है, प्राइस करेक्शन इस मार्केट में हुआ नहीं है. सो दिस इज मोर लाइक अ टाइम करेक्शन रेदर देन अ प्राइस करेक्शन. तो अपसाइड मोमेंटम जो होगा, that can still be less. The alternate scenario which remains open as of now, अगर हम कल गैप डाउन हो जाते, आइलैंड रिवर्सल बनाते, शार्प रिवर्स हो जाते, then the possibility will be very high that we are forming a diametric kind of a pattern. That possibility will become very, very high. तो मेरे लिए key level to watch on Nifty is what? 22,118. That's the level that I'm going to keep a close watch on. Okay, 22,118. Downside, I'm going to keep a close watch on this gap area. Along with that, ये gap area के आसपास अगर हम देखेंगे तो 21,840 है. और क्या क्लोज दिया था मार्केट ने 21,840 पे, जब हमारी बात हुई थी ट्विटर पे कि 21,840 इज क्रूशियल. सो एग्जैक्टली वहां क्लोज दिया, एंड वी नाउ सस्टेनिंग अबाउ दैट लेवल ऑफ, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी उस लेवल्स के आसपास से सस्टेन करे. सो 21,840 यहाँ पर था, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर था जो क्लोज किया, नॉट दिस लेवल बट दिस लेवल, एंड देन वी सस्टेन्ड अबाउट इट. सो हमें एक्सेप्टेंस मिल गया 21,840 के ऊपर अराउंड इस लेवल पे. मैं वापस लिख दे रहा हूँ, वही मैं चेक कर रहा था, दिस लेवल. यहां से हमें एक्सेप्टेंस मिल गया ऊपर कल के दिन में, और आज फॉलो अप भी है. तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड पॉजिटिव है. वी शुड यूज डिप्स एज बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज कैंडलस्टिक टर्न हो चुका है. प्रिफर्ड सिनेरियो फिलहाल के लिए वही है कि ये ABC में सी फेलियर फ्लैट है. अगर 22,118 से फिर से शार्प रिजेक्शन आया तो डायमेट्रिक वाली पॉसिबिलिटी ओपन होगी. ऐसे में ट्रेड करने के लिए यू हैव टू यूज ऑप्शंस एज दी स्ट्रैटेजी, and that is what you have to combine. Upside momentum will be slower, not very much like what we saw in the past, because time cycle is not on the buy mode. Once we see a reversal down, that's going to have a classic opportunity to again sell the market. Reversal down means low below prior low, close below prior low, and high below prior high. ये कंडीशन तीन कंफर्म हुए तो क्लासिक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे निफ्टी पे मिलेगी. बाइंग के लिए टिप्स का वेट करना है.
रिस्क रिवॉर्ड के लिए, या ऑप्शंस को सेल करना है, पुट ऑप्शन सेल करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू ट्रेड. So this is the structure I am looking at. Close about 22,118 to extend the rally. Failure to close about 22,055 is going to result into reversal. अगर रिवर्सल आया क्लासिक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर नहीं आया, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू राइड इट. दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू. नाउ लेट मी गो टू फ्रॉम निफ्टी, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी. Now, if I'm looking at Bank Nifty chart, I'm going to go on the daily time frame chart. Now, Bank Nifty का एक 54 days का cycle है, which is working extremely well on most of the occasions. ये cycle due होता है यहाँ पर 21st of Feb में, and we are very near to that cycle zone on Bank Nifty. Now, that is interesting कि Bank Nifty के यहाँ पर है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी भी लग रहा है बैंक निफ्टी में शायद एक लेग नीचे आ सकता है. सो की लेवल्स टू वॉच ऑन बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी 46,890. आई एम गोइंग टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन बैंक निफ्टी फॉर अ लेवल which is 46,890 on the upside. For me, the important support for Bank Nifty is going to be around this area, which is this level. So 45,850 का वो लेवल है, आप जाके मैं मेजर करके देख सकते हो. सो ये की लेवल से 46,890 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में एक्सेप्टेंस आया तो ट्रेंड बुलिश होगा. नहीं आया और 45,850 अगर ब्रेक हो गया, then Bank Nifty can again start showing some nervous sign for next 3 to 4 days of time frame. This is how I am going to look at Bank Nifty. फिलहाल I will form some option strategies on Nifty and Bank Nifty and ride the current ongoing move. So Nifty पे, as I said, the entire movement looks like an irregular C failure flat pattern. Once that is complete, which is looking like we are right now moving up, but I am not going to be super bullish until I see close about 22,118. If we see a close above that level, then maybe broader wave E is extending. We might have to evaluate that. और इसकी क्लैरिटी मुझे मिलेगी बहुत ही जल्द. So दोस्तों, ये की लेवल्स है. मार्केट में ट्रेड सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिंपल है. यहाँ पर डिप आता है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, निफ्टी में खास करके, तो बाय करना है जब तक 21,920 इंटैक्ट है. अगर 21,920 निकल गया तो मतलब रिवर्सल ट्रेड सुपर मिलेगा हमें, बहुत अच्छा ट्रैप होगा बुल्स का और क्लासिक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वो नहीं निकला तो बाय ऑन डिप्स है. दैट्स द स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू अडॉप्ट. तो दोस्तों ये था, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. संडे को there is a very clear I'm doing a very clear cut discussion on trade setup, looking at price action, 3 candlestick rule plus time cycle, which is going to be on 18th of Feb. संडे में रखता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे जो लोगों की डिमांड थी, और दूसरा मेरा इवेंट भी है सैटरडे को, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये एक फ्री एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास रखूं मैं, जो आप एनरोल कर सकते हो. लिंक यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट सेक्शन. जहां पिन किया हुआ है वहां क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, और आपको जूम लिंक आ जाएगी. बहुत सारे जनों ने लास्ट वीक अटेंड किया था. दे शेयर्ड अक्रॉस द प्रॉफिट्स दैट दे वर एबल टू मेक basis of that webinar, basis of the techniques I talked about. So they are making money looking at that. And I will also explain how to place a stop loss, how to trade the market to the very day, hour and minute, looking at the concept of time cycle. And this I'm going to do on 18th of February morning 11 a.m. You have to be there 10 minutes prior, क्योंकि हम हाउसफुल हो जाते हैं, और संडे को है दोस्तों तो हाउसफुल तो होना बनता ही है. अगर हाउसफुल हो गए तो आप जूम पे जुड़ नहीं पाओगे. और जूम पे मैं बहुत सारे इंटरेक्शन करता हूँ, चैट लेता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ. तो क्या आप रेडी हो सीखने के लिए? अगर यस तो क्लिक करिए, रजिस्टर करिए. यू विल ऑल्सो गेट बोनस वीडियोस. और साथ ही में ये वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट लिखना ना भूले, शेयर करना ना भूले. जाते जाते एक और चीज, हमारा नेक्स्ट वीकेंड को दोस्तों काल चक्र का सेशन है, एंड 2 days का सेशन है. इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम 10 to 4, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हर्स्ट टाइम साइकिल्स, Gann square of 9. I'm going to reveal for the very first time combination of KST indicator,
with a very clear cut प्रिंग स्पेशल के प्राइस फोरकास्टिंग लुकिंग एट टाइम, ये सारी चीजें हम करेंगे इस काल चक्र में। 10 से 4 का सेशन है नेक्स्ट वीकेंड के लिए। इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लिमिटेड सीट्स है दोस्तों, यहाँ पर अगर सीट्स फुल हो गई, आई विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट यू, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स देयर। इफ यू हैव liking these videos and you are loving what we are doing, do not forget to share it across, do not forget to subscribe the channel and do not forget to comment कि क्या लग रहा है आपको मार्केट में, क्या आप सही ट्रेड कर पा रहे हो, आर यू बिकमिंग दी टाइम ट्रेडर, पुट इट इन द कमेंट सो दैट आई नो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, संक्षिप्त में था, ब्रीफ में था। आई एम श्योर ये की लेवल्स आप ध्यान रखोगे और ट्रेड करोगे तो सही ट्रेड पड़ेगा और पैसा भी बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं 18th ऑफ फैब को सुबह 11 बजे 10 मिनट पहले जुड़ना, और बहुत ही शानदार वे से हम मार्केट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर।